There are days when the battle looks bigger than yourself. There are days when the opponent seems invincible. There are days when luck doesn't favor you. Nothing seems to go your way. That is the day a champion is born. Hunters Cricket. Think of health. Think of us. Think of weight management. Think of us. Think of lifestyle modification. Think of us. We are Anchal's Nutri Treasure. We have a history of changing life to healthy life over the period of 2 years now. Healthy life with healthy diet is the name of the game we all are in for. If yes, we are the one, Anchal's Nutri Treasure. Personalized services from qualified dietitian Anchal Garg Sharma around metabolic disorders like diabetes mellitus, cholesterol, hypertension, thyroid, and PCOS management, etc. Interested healthy life, healthy diet believers can reach us at our Facebook and Insta pages at anchal.nutritreasure, email anchal.nutritreasure@gmail.com, contact number 886-042-8386. What are the ingredients of a great team? Chomping on foods together. Sticking like glue together. Having fun together. Going places together. Doing stuff differently together. Celebrating together. So, what are the ingredients of a great team? Being together. Hunters Cricket. Good evening everyone, this is Rahul. Welcome you again on the 6th episode of Off the Field with Rahul, sponsored by HunterSportsClub.com. So today I have another superstar from Hunters Club, and before I invite the guest, I have a small surprise for him from our Hunters family. Here you go. Hi guys, I'm talking about somebody who's a fantastic opener, plays spin and pace equally well. He's Ajinkya Rahane of Hunter Squad. Works very hard on his fitness. Very fit, very agile. He feels very well. He's a live wire on the field. And captain's delight to have a team member like him in the team. And he's an absolute pleasure to play along with him. Hey guys, we are talking about a person who has an excellent sportsmanship. He's been a good opener to our team, plus his commendable fielding effort
on the field is amazing. I still remember his effort on the boundary line. Playing with him is such an amazing experience. And unlike him, I really wish I could do a beer bottle challenge one day. Thanks. Hello, this is for one of my favorite players of Hunters. He's most energetic, enthusiastic, and always up for the challenge. I won't say his name, but to make it easier, here are few qualities of him. He's one of the youngest players of our squad, good fielder, fitness freak. I wish him best of luck and keep doing the hard work. Well, that was quite a surprise. And thank you, Team Hunters. So if you have guessed it correctly, then it's great. And if you haven't, then don't worry, I'm still here. So before I invite the guest, let me give a quick introduction about him. He is an aspiring cricketer. He has represented under 19 cricket of Arunachal Pradesh. He's a gun fielder. He's a fitness freak. He plays for Hunters Red. Ladies and gentlemen, if you have guessed it correctly, please welcome none other than Ankit Deswa. Welcome to the show, Ankit. थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तारीफ सुनने को मिली। हाँ, नर्वस तो नहीं है ना बिल्कुल भी? नहीं नहीं, बहुत अब तो काफी कंफर्टेबल। हाँ, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। बाकी वो तो होता है बट डोंट वरी। और किसी ने कोई टिप दी कि ये मत बोलना, कैरेट अवे मत हो जाइयो, या फिर ऐसे करेगा वैसे करेगा, कुछ टिप मिला? किसी फ्रेंड ने दिया, अर्पित ने, किसी और ने, मनु सर ने? हाँ, बस यही बात हुई थी। मनु सर ने तो काफी मोटिवेट किया। जब उन्होंने बोला था इंटरव्यू के लिए, तो मैं पहले डिनाई कर रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि बस कर डाल। फिर क्या है, फिर डिसीजन ले लिया, तो बस ऑल सेट। एग्जैक्टली, कर डाल, कोई टेंशन नहीं है। जैसे फ्रंट फुट पे खेलता है ना, वैसे ही खेलने का है। ठीक है, दिल से इंटरव्यू देगा तो मजा भी आएगा लोगों को सुनने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट राउंड, व्हिच इज पिच रिपोर्ट। ओके, सो तेरा फर्स्ट राउंड है, तेरी पहली बार है, तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज पिच रिपोर्ट ऑल अबाउट। सो पिच रिपोर्ट में जनरली हम क्या करते हैं, विल टॉक अबाउट, हम तेरे मतलब पोस्ट और प्री लाइफ ऑफ हंटर्स के बारे में बात करेंगे कि हंटर्स से पहले लाइफ कैसी थी, जर्नी कैसी थी, कैसे हंटर्स में आके किसने इंट्रोड्यूस कराया, कौन कौन फैमिली में है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब ये बताओ भाई, अंकित देसवाल है कौन और फैमिली कहाँ से है, कहाँ से वो आता है, क्रिकेट कैसे स्टार्ट किया? ओके, सो आई वाज बोर्न इन आगरा, और वहाँ आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो अंकित एक काम कर, ऐसे स्टार्ट कर, अपनी फैमिली के बारे में पहले बताया, मतलब पेरेंट्स कम फर्स्ट, फैमिली में कौन कौन है उसके बारे में बता, और खुश होके स्माइल करके बताना है। एक बड़ा भाई, दी, मॉम डैड, और क्या कहते हैं, सबसे छोटा मैं हूँ घर में। अच्छा। और सबसे छोटे को बहुत आज़ादी होती है ड्रीम्स फॉलो करने के लिए। एग्जैक्टली। 9th क्लास में था, वहाँ 2009 की बात है। तो क्रिकेट करियर एक स्टार्ट हुआ है, मतलब दादाजी की वजह से मेरे। उनको बस एक तरीके से क्रिकेट के वो फैन होते ना, एकदम बहुत क्रेजी वाले। अच्छा, वो ट्रांजिस्टर पे सुनते होंगे, क्रेजी वाले एकदम। हाँ बिल्कुल, रेडियो पे सुनते थे। तो मैं समर वैकेशंस में गया हुआ था, अपने गांव गया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ वो क्या कहते हैं, जो है मैच चल रहा था। मुझे ब्लरी थोड़ा सा याद है उस टाइम का, तो बिकॉज आई वाज अ किड। धोनी की बैटिंग चल रही थी। अच्छा। वो बहुत खुश हो रहे थे, माही मार रहा है धोनी। वो धोनी वो प्यासे बोलते हैं, अभी तो माही की बारी है। इंडिया की सिचुएशन काफी टफ थी, और बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो रहे थे। आई वाज लाइक, यार ये क्या चीज है, मतलब इतने खुश हो रहे हैं मेरे फैमिली वाले, यार ये तो करना है, ये मतलब ड्रीम फॉलो करना है, अपने फैमिली वालों को खुश करना है। तो वहाँ से एक छोटी सी क्रिकेट बिगिनिंग हुई, अपना स्टार्ट हुआ। देन आई केम बैक आगरा, मतलब पहले मैं क्या कहते जो अपने वहीं रहता था, आगरा में। तो आगरा में कहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुआ? कॉलेज से, स्कूल, मतलब स्कूल से, ऐसे आपने बताया 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ था, तो 9th स्टैंडर्ड से ही मतलब डिसाइड कर लिया प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है?
हाँ तभी से डिसाइड कर लिया था। Straight away. सेंट जॉन्स कॉलेज है वहाँ, उनका समर हाँ। कैंप लगता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। पहले मुझे मतलब ज़्यादा पता नहीं था कैसे क्या करा, थोड़ा वो होता है ना, एक आपके पास गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस और नहीं होती है। फैमिली से भी इतना, हाँ इतना पता नहीं होता कैसे क्या करना है, तो कुछ एक पता नहीं था। फैमिली बस से एक फ्रेंड था मेरा वो। हाँ, हाँ। बताओ बताओ बताओ, एक फ्रेंड था आपका? हाँ, तो एक फ्रेंड था मेरा स्कूल में ही, तो उससे मैंने बात किया, वो समर कैंप जाता था। तो अच्छा। मुझे पता लगा वो क्रिकेट खेल रहा है कहीं से, फिर उससे बात हुई। देन फिर मैंने ज्वाइन किया, कैंप ज्वाइन किया। वो एक टाइम था, वहाँ से फिर टोटली डिसाइड कर लिया था कि बस अब कि खेलना है, बस डेडिकेशन मतलब प्रोफेशनली फुल। खेलना है बिल्कुल। अच्छा, अर्जुन को पीछे मछली नहीं की हटना। आंख नजर आ रही थी बिल्कुल। बिल्कुल दैट्स बिल्कुल नाइस। भाई, तो बिल्कुल भाई। घर से सपोर्ट पूरा था, फैमिली से पूरा सपोर्ट था कि हाँ कोई नहीं, क्योंकि जनरली हमारे टाइम में क्या होता था, जैसे ही बोलो यार क्रिकेट खेलते वेरी गुड, बट जैसे ही बोलो ना कि प्रोफेशनल बनाना है, तो एकदम से सारे हैरान होते हैं, नहीं नहीं नहीं, एडवाइसेस आने लग जाती है, नहीं भाई क्या कर रहा है, करियर खराब हो जाएगा, हमारे खानदान में मतलब सबने ये किया है वो किया है। तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ भी? इतना मतलब जो है इजी नहीं था। बाकी पापा तो काफी इमोशनल सपोर्टिव है। इमोशनल अत्याचार। वो होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है कि यार इतने करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन है, कैसे होगा, 11 लोग चूज किए जाते हैं, वो राइट चीज़ थी। राइट। लेकिन पापा का सीधा ये था, कुछ भी करो पूरे दिल से करना। फ्रीडम तो था, लेकिन That's साथ में nice, एक यार। वो भी था कि अगर सही नई टाइम पे होता है कोर्स तो बस फिर हाँ उसका प्रेशर सेकेंडरी था। डॉक्टर इंजीनियर। हाँ, तो बचपन से मतलब बचपन का क्या था कि बचपन से क्या बनना चाहते थे आप? और वो या फिर जैसे एज एज बढ़ती गई चेंज होता गया एम, कि पहले डॉक्टर बनना है, फिर ये बनना है, फिर वो बनना है, कुछ था वो? ये सबसे पहले तो था, वो होता है ना, एक जब आप बच्चे होते हो तो आपके ड्रीम चेंज होते रहते हैं टाइम। राइट 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 राइट। तो सबसे पहले मैं बोलता रहता था, कोई भी पूछता था क्या बनना चाहते हो, मैं बोलता है एक्टर बनना है। अरे क्या बात है। हाँ, एक्टर ये बनना है इंडिया में बस। एक्चुअली दो ही चीज चलती है, बॉलीवुड या क्रिकेट। हाँ बस यही। तो और फिर? एक्टर बनना है। फिर ये सिक्स की बात है, एक्टर बनना है। उसके बाद बस सेवेंथ एट्थ ये टाइम जो था, जब दादाजी को देखा कि वो क्रिकेट के फैन है, और वहाँ से डिसाइड हो गया था कि बस अब तो एक ही वन गोल वन डायरेक्शन वाली चीज है, वो रखना है। वेरी नाइस वेरी तो नाइस। ये चीज थी। तो आप मतलब हु इज योर फेवरेट हीरो रणवीर उस टाइम पे? कपूर। पहले कौन था, पहले कौन था, पहले कौन था? पहले मैं थोड़ा क्या कहते हैं, जो है पुराने जो हीरोज हैं उनमें, उनको भी मतलब उनसे काफी टच्ड हूँ। उनके कुछ सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गए। वेरी नाइस। तो पहले राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, तो काफी पुराना हो गया है। फॉलो करता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस है, वेरी नाइस। हाँ मतलब एक्चुअली ना पुरानों में दादाजी वगैरह और नानाजी वगैरह के लिए ना वही वो तो धर्मेंद्र है भैया असली हीरो, जिसके डोले बोले हों, मतलब लड़ाई वड़ाई 4-5 गुंडों को मार दे, वो उसको हीरो कंसिडर करते थे। मतलब बचपन से काफी देखा है। और वो पंजाबी जट और हम जाट, तो वो एक चीज आती है ना, वो बचपन से ये खून में, तो ये इसलिए थोड़ा है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। तो मतलब क्रिकेट आपने जब स्टार्ट किया और आपको खेलने भी लग गए थे, तो चैलेंजेस तो आई होंगे, ऑब्वियसली बात है। व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट तो डिफिकल्ट होता है। अंडर 14-16 भी खेला आपने या सीधे अंडर 19 में? मतलब अरुणाचल प्रदेश कैसे पहुंचे बेसिकली? इस क्रिकेट करियर मेरा स्टार्ट हुआ बेसिकली आगरा छोड़ा मैंने 2014 में आफ्टर 12। तो जब डिसाइड कर लिया था कि अच्छी तरह से, क्योंकि आगरा में क्रिकेट इतना अच्छा है नहीं, तो हमने सोचा हम थोड़ा बाहर किसी स्टेट से ट्राई करते हैं। तो पहले हम गए 2014 में, मैं और मेरा फ्रेंड करते हम लोग गए पहले राजस्थान। तो उसके बाद फिर वहाँ खेले, थोड़ा स्ट्रगल रहा काफ़ी, वहाँ बैन हो गया, राजस्थान गेस्ट प्लेयर नहीं खेले। फिर हम दिल्ली आए, तो दिल्ली एक फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि ऐसे आप अरुणाचल जाओ, वहाँ एफिलिएशन मिल रहा है स्टेट को, वहाँ ट्रायल दो। तो वहाँ काफ़ी फॉलो किया, ट्रायल वगैरह दिया, फिर सिलेक्शन हो गया। देन मतलब डायरेक्ट अंडर 19 हुआ, अंडर 14-16 नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। तो कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप? कौन से ईयर में आपने खेला अंडर 19? 2017। 2017? ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। अब बताओ, हंटर का पता किसने बताया भाई? अरुणाचल प्रदेश से हंटर की जर्नी क्या है? हंटर में मतलब कैसे हंट करना स्टार्ट कर दिया? माय फ्रेंड अर्पित वाज प्लेइंग फॉर हंटर्स, तो उससे बात हो रही थी एक बार, तो मुझे कॉर्पोरेट खेलना ही था। अच्छा। तो उसने बताया कि वो हंटर्स के लिए खेल रहा है, तू आगे ट्राई कर। क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा क्लब है। तो बस उसने इंट्रोड्यूस किया और बस हंटर्स के लिए हंट करना स्टार्ट कर दिया।
राइट 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 राइट। कल्चर कैसा लगता है हंटर्स का? मतलब जैसे बिकॉज आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और हंटर्स की क्रिकेट में क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं बेसिकली? सी कॉर्पोरेट क्रिकेट में क्या होता है, प्रोफेशनल क्रिकेट और कॉर्पोरेट क्रिकेट में मेरे हिसाब से जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो एक डिफरेंशिएट करना हो तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन, वो आपको हर टीम में नहीं मिलता और ये प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत होता है, टाइम पे पहुंचना और डिसिप्लिन रहना। हाँ, तो ये हंटर्स में मैंने काफ़ी देखा कि फैमिलियर होने के साथ साथ वो डिसिप्लिन है काफ़ी और Disciplined तो दे ईगरली वांट टू विन एवरी मैच। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे सिमिलर लगती है। और पैशन बहुत है क्रिकेट का पैशन जो है ना वो हर एक बंदे में नजर आता है। दैट इज फॉर मतलब ये है वहाँ पे इनहेरिट है या वो तो है इंटीग्रल पार्ट है कि भाई पैशनेट हो तो अभी आप हंटर से खेल सकते हो, अदरवाइज तो आप नहीं खेल सकते हंटर से। राइट, एग्री है, कंप्लीटली एग्री। तो एक बात बताओ यार, लाइफ में इंस्पायर क्या चीज करती है आपको? हर किसी को एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि जब टफ टाइम आता है तो एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि यार ये इंस्पायर करती है, इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यही मुझे मोटिवेट करती है मेरी इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक माई पर्सनल लाइफ, माई स्ट्रगल, वो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और मैं कभी भी मतलब क्या कहते हैं जो है लो फील करता हूँ थोड़ा, क्या कहते हैं होता है हर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, वो कभी कभी नेगेटिव हाइज एंड लोज आते हैं, हाइज एंड लोज हर आते किसी की हैं। लाइफ में होता है। हाँ, तो ये चीज़ है, ये मैं अपना फिर फ्लैशबैक याद करता हूँ कि कैसे मैं एक ड्रीम मैंने अकेले सोचा और कोई आपके पास जब मोटिवेटर नहीं था और आपने अपने स्ट्रगल से जो सीखा, तो मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मैं मोटिवेटर। तो रोल मॉडल कौन है आपकी लाइफ? कोई रोल मॉडल बना है? क्रिकेट और नहीं, लाइफ में रोल मॉडल कौन है? और क्रिकेट का तो ऑब्वियसली बात करेंगे, बट लाइफ में रोल मॉडल लाइफ क्या में है? रोल, आई थिंक माय पापा। ओह नाइस 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 यार, ये मैं ट्रेंड भी देख रहा हूँ कि हम ना, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, वो मुझे कि हम लोग अपने पेरेंट्स को मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आके डेफिनेटली वी आर मतलब कॉलिंग देयर नेम आउट कि हाँ यार हम जो भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं। सो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। हाँ जी, बताइए अपने अंकल के मतलब डैड के बारे में बताइए। वीडियो थोड़ा, सॉरी कैन यू रिपीट? हाँ हाँ श्योर श्योर, मैं कह रहा हूँ आपने बताया ना कि आपके रोल मॉडल जो आपके फादर हैं, तो कुछ बोलना चाहोगे उसके बारे में? जी, मेरे पापा मतलब रोडवेज में है, वो गवर्नमेंट और मिडिल क्लास फैमिली से हम, तो मेरा बचपन से काफ़ी पापा के साथ में काफ़ी वो रहा है, घूमना फिरना मेरी हॉबी है। आई लव ट्रैवलिंग। तो पापा के साथ मैंने जिस हिसाब से टाइम स्पेंड किया ना, उन्होंने हमेशा जैसे समझाया है, मतलब सबके पेरेंट्स जैसे समझाते हैं, केयर करते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जो है मैं उनसे काफ़ी अटैच रहा हूँ और मैंने उनसे लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं, तो उस चीज़ से वो मेरे लिए रोल मॉडल है। वो रोल मॉडल है, मैंने एक तरीके से स्टार्ट भी किया और बेसिकली मेरे ख्याल से वही चीज़ आपको इंस्पायर भी करती होगी। जैसे सेल्फ मेड हैं डैड, उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतना स्ट्रगल किया, एवरी डे जाना और ये सब करना, तो डेफिनेटली वो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग, काफ़ी इंस्पायर करती है सब चीज़ें। हाँ, वो क्या कहते हैं फैमिली का क्या है ना, काफ़ी मतलब जो है पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, मेरे ताऊ जी चाचा जी हैं काफ़ी 10-12 हैं, तो पापा ने खुद एजुकेशन अपनी की, क्या कहते हैं जो है पार्ट टाइम जॉब किया, तो मतलब वो सेल्फ मेड है, तो उन्हीं से ही ये चीज़ सीखने को मिली। वेरी नाइस, ये काफ़ी इंस्पायर करता है मुझे। एग्जैक्टली क्वाइट इंस्पायरिंग। सो यार थोड़ा सा फैमिली से हटते हैं और थोड़ी मस्करी करते हैं। सो अब बताओ अंकित कि क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, ऐसा कुछ किया है कि मतलब ओए यार ये साइड भी है, अंकित कह रहे हैं मस्करा भी है बड़ा, बताओ। क्रेजीएस्ट थिंग, ओके, ये अभी तक का सीक्रेट भी है। रिवील करो लेट्स रिवील। फॉर मी 2016 में दिसंबर में क्रिकेट टूर पे गए हुए थे गोवा। अच्छा। तो हमारा क्या स्टार्टिंग में काफ़ी मतलब जो है हम मैच वैच हारे, तो काफ़ी क्या कहते हैं लो फेस चल रहा था। देन वी फाइट बैक और हमने कंटिन्यू मैचेस जीते और दैट वाज अ कॉर्पोरेट टूर्नामेंट। गोवा में क्रिकेट खेलने गए हो, गोवा फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्पोर्ट है भी नहीं क्रिकेट, ठीक है, वहाँ चलता है फुटबॉल, और गोवा इज फेमस फॉर अदर थिंग्स मैन, गोवा इज फेमस फॉर पार्टीज एंड अदर थिंग्स।
तो आई थिंक अब जो रिवील करने वाले हो ना आप, वो मेरे ख्याल से क्रिकेट से रिलेटेड तो नहीं है। बिल्कुल क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रेजीएस्ट थिंग थी, और काफ़ी लोग बहुत शॉक्ड भी होने वाले हैं बिकॉज ये चेहरा किसी को पता नहीं है। हाँ, बताओ बताओ। तो वहाँ हमने क्या कहते हैं जो है फाइट बैक किया, और हम अच्छा कर गए उस टूर्नामेंट में। तो मैं काफ़ी मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए वो। और तो हम 31st की नाइट थी अरे और वाह। पार्टी का टाइम था। तो पहली बार जो होता रहे क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा नए मजे कर रहे हैं, बस हम बह गए थोड़ा, तो पीने में क्या कहते हैं जो है आई वाज भाई ध्यान से, समुंदर है वहाँ पे, ज्यादा दूर मत बह जाना। बह तो गया ही था, पर वो फ्रेंड्स वगैरह ने संभाल लिया। अच्छा। आई वाज फेंट, और फिर उसके बाद मेरी क्या हालत थी मुझे पता नहीं है। ओ तेरी। और द बेस्ट थिंग व्हेन आई वेक अप नेक्स्ट डे, तो मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ यार मैं क्या कहते हैं लास्ट नाइट मुझे कौन लाया। तो अच्छा, कुछ याद ही नहीं है कि तूने ये, हाँ कुछ याद ही नहीं है मुझे। और मैं बहुत ऐसे बिंदास से एकदम पॉजिटिव हो गया, कह रहा हूँ यार लास्ट नाइट क्या हुआ था। मेरे दोस्त ने बताया कि तूने ये किया है। तो बोलता है क्या यार ऐसे कैसे यार, मतलब ये मतलब क्या क्या किया, ये पे थोड़ा सा मतलब। हाँ ऐसे नहीं कर सकता मैं, ये तुम लोग मेरी फिरकी ले रहे हो, मजाक कर रहे हो। नहीं, कैसा, यही जानना था तुम, कैसा ये मतलब क्या क्या। ऐसा था मैं ड्रंक था, मुझे नहीं पता है ये। अच्छा, मैं बाथरूम में मिला था। वहाँ से उन लोगों ने मुझे उठाया है। किसी के साथ या अकेले? अकेला था। अच्छा, अकेले। ओके। उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, गाड़ी में डाला, फिर होटल लेके गए। फिर ये चीज़ जो उन्होंने मुझे बताया नेक्स्ट डे, तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था। और उन्होंने फिर मुझे बोला यार ये क्या कर दिया। और हमारा सेकंड डे मैच भी था, और फिर मैं मैच खेल रहा हूँ एकदम हैंगओवर में, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ फील्ड में। तो अच्छा। तो चलो, ये तो गोवा वाली चीज हो गई। ये बताओ, हंटर्स वाले किसी एक मैच में भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मैच खेलने आए हो आपको कुछ पता ही ना हो कि क्या हो रहा है? उसके बाद से मैंने टू बी ऑनेस्ट उस केस के बाद से, गोवा वाले के बाद से, मैंने कभी एंजॉय के लिए भी ना पीना, कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लाइफ टाइम मतलब लेसन मिल गया। लाइफ टाइम लेसन मिल गया एकदम। बहुत ज्यादा मजे लिए थे मेरे अभी तक उस चीज के पीछे। ऑफ कोर्स। तो ये हुआ था ये। जैसे आपने बताया यू आर अ बॉलीवुड फैन, आप बॉलीवुड के बहुत बड़े वाले फैन, मतलब बचपन से एक्टर भी बनने आ रहे थे। तो एक कोई फेमस बॉलीवुड का डायलॉग जो कि लाइफ के बहुत क्लोज हो आपके लिए। ओके, ये जवानी है दीवानी मूवी इट्स माय फेवरेट मूवी। तो उसका एक डायलॉग है जो काफी मेरे मतलब जो है इट्स क्लोज टू माय हार्ट। अच्छा। तो उसका डायलॉग है रणबीर सिंह का। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। वो मैं दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना भी चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। Exactly. Nobody wants to stop. और on that note, मैं भी रुकना नहीं चाहता। Let's take a break and I have a surprise for you once again. Watch it. Hey guys, this is Arpit Rao from Hunters Cricket Family. The guest we are going to talk about today is a very special and very close friend of mine. He is like brother to me. And in Hunters Family, our bond is known as Jay and Viru. And this person is fitness freak. He is mad about his physique and he always want to stay fit. And he is also mad about social media. He is always on Instagram. And one more secret I want to reveal about him is he is the real hunter of the field too. And many more secrets are still to come. So all the best guys. Thank you. हाय गाइस, जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा क्रिकेटर है, हार्ड वर्किंग है और फिटनेस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली काफ़ी अच्छा क्रिकेटर है। बस, थैंक यू सो मच। Okay. Now let's move ahead to our second round, which is power play. ये राउंड ना बड़ा ट्रिकी है। तो अंकित, यू आर एन ओपनर, ठीक है, आप ओपनर, तो आप ये समझोगे कि पावर प्ले एक ओपनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है।
संभल के खेलना होता है, ठीक है, कभी बॉल मूव अराउंड हो रही होती है, कभी पाटा विकेट मिल जाती है तो भैया लूटना होता है, राइट। तो कभी अच्छा बॉलर मिल जाता है तो अगेन ध्यान से, मतलब कैलकुलेटिव होना पड़ता है भाई कि रिस्क भी लेना है, विकेट भी बचाना है, राइट। तो आई नो वहाँ का पावर प्ले से ज्यादा टफ यहाँ का होने वाला है। नहीं इतना टफ नहीं होने वाला। तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्टॉप वॉच रेडी कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा यार, 1 मिनट में आपको दूंगा और 1 मिनट में आपको 6 क्वेश्चन है बेसिकली। तो लेट्स से 6 क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आप 6 के 6 अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते, देन विल सी कि कितने क्वेश्चन आपने राइट आंसर किए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कबड्डी प्रो लीग की सबसे सफल टीम कौन सी है? आई थिंक आई डोंट गेट द नेम। आई थिंक जयपुर पिंक पैंथर्स। रॉन्ग आंसर, इट्स पटना पायरेट्स। जयपुर पिंक पैंथर ने सिर्फ एक जीता, पहला वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, रणबीर कपूर की कमर्शियली सबसे सक्सेसफुल मूवी कौन सी है? कॉमर्शियली सक्सेसफुल मूवी। जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। टाइम इज रनिंग आउट, व्हाट टाइम ले रहे हो आप? देयर आर प्लेंटी ऑफ मूवीज बट एक ही होगी ना। रॉकस्टार, रॉन्ग आंसर, संजू। ओके, नेम 3 cricketers from Agra. Name 3 cricketers from Agra represented India. Sorry, can you repeat? Name 3 cricketers from Agra represented India. दीपक चार, राहुल चार, एंड वन मोर नेम, वो काफी पहले खेले थे। Time is running out. You can skip. करंट क्रिकेटर है एक और क्रिकेटर। ओके, करंट क्रिकेटर है पूनम यादव, इंडिया से खेलती है, लेग स्पिनर है, बहुत शानदार खेलती हैं। ओके, मूविंग अहेड नाउ। आपने ये नहीं बोला मेल और फीमेल। भाई मैंने ही बोला क्रिकेटर। वी डोंट डिफरेंशिएट। ओके। हाउ मेनी मैचेस सचिन took to score his first 100? Can you repeat? How many matches Sachin Tendulkar took to score his first 100? सचिन ने अपनी पहली सेंचुरी कितने मैचों के बाद मारी? बताओ। ओके, पहली सेंचुरी। वैसे टाइम अप हो चुका है। थोड़ा सा टाइम और देना हाँ, पड़ेगा। मतलब I'm giving you जल्दी मैच ओडीआई में। हाँ, पहले मैच में तो ज्यादा स्कोर नहीं किया था। सचिन तेंदुलकर ने, वो आप टेस्ट मैच बोल रहे हो, पता है, ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो टेस्ट मैच है। वो उन्होंने इंग्लैंड में जाके 119 मारा था मेरे ख्याल से। दैट वाज हिज फर्स्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट ओडीआईज? ओडीआईज मैं बोल रहा हूँ, ओडीआई। ओके, ओडीआई 100 मे बी इट्स 8 और 10 मैच, आई एम नॉट श्योर। 79 मैचेस लिए थे सचिन तेंदुलकर ने टू स्कोर हिज फर्स्ट सेंचुरी। सचिन स्टार्टेड हिज करियर एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, चौथे पांचवें नंबर पे खेलते थे। फिर धीरे धीरे 92 के वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में एक मार्क ग्रेट बैट्समैन जब ओपन किया था, उसके बाद से उन्हें मौका मिला था। कोई हमारा ओपनर रिटायर्ड हो गया था तो उन्हें चांस मिला था ओपन करने का। ही डिड वेल, देन ही स्टार्टेड ओपनिंग, उनको ओपन करने का मौका। फिर मैं क्या 1994 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 144 किया था, सिंगर कप था वो, सिंगर कप। 79th मैच था उनका और 76 इनिंग्स। ओके, फैक्ट तो अभी तक नहीं पता था। हाँ, so that's all I had in this particular round. Basically, यार, I didn't expect कि आप ऐसे परफॉर्म करोगे। So रणबीर कपूर was your favorite hero. रणबीर कपूर was your favorite hero. सचिन तेंदुलकर is your idol, on-field cricket god. तो मुझे लगा था कि इनके तो स्टार्ट्स मतलब पता ही होंगे। So anyways, चलो कोई नहीं। Let's move ahead, and with that, I have another surprise for you. हेलो एवरीवन, मैं अंकित प्रताप सिंह। मेरा मैसेज अंकित देशवाल के लिए है, जितना अच्छा वो फील्डर है उतना ही अच्छा बैट्समैन भी है। उसको बस एक ही बात बोलूँगा, जितना टाइम वो विकेट पे ज़्यादा स्पेंड करेगा उतना उसके लिए भी बेनिफिट है और टीम के लिए भी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं शिवम बरनवाल।
मैं अंकित देसवाल के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि वो ऊपरी क्रम के एक बहुत ही होनहार बल्लेबाज हैं और उनके लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है मेरा कि वो जब भी जाएं अपनी इनिंग्स को, छोटी छोटी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. Okay, now coming back to our third round, बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही मजेदार वाला राउंड होने वाला. इस राउंड का नाम है रिवर्स स्विंग. रिवर्स स्विंग. सो ओपनर हो आप तो, और आपको पता है रिवर्स जब बॉल होता है तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है खेलना उसे, राइट. और इस बार जो सामने है वो भी मीडियम पेसर ही है, तो अंदर भी रिवर्स होगा, बाहर भी रिवर्स होगा, बाउंसर भी आएगा, राइट. और मैंने तो सुना भी है यार, आप तो मतलब एक स्टोरी भी है जो मुझे पता भी है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है. सो अब इसके अंदर लेट्स स्टार्ट रिवर्स स्विंग. यार हमने सुना है कि मैं कुछ कहना चाहूंगा. आई एम फ्रॉम राहुल सर फैन क्लब. ये सब कोई फायदा नहीं चलेगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है. बाउंसर्स आएंगे और वो बहुत घातक आएंगे. अच्छा, पहला क्वेश्चन. यार आपके बारे में सब जानते हैं दैट यू आर अ फिटनेस फ्रीक, मतलब आप फिटनेस पर बहुत फोकस करते हो, राइट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. रोल मॉडल हो बेसिकली, क्योंकि मैंने आपके फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करी और देखा भी है यू आर क्वाइट अ फिटनेस फ्रीक. आपको हंटर्स में अगर 3 अनफिट प्लेयर्स बताने हो तो 3 कौन से सबसे अनफिट प्लेयर होंगे जो आपको लगता है कि यार ये बंदे क्रिकेट खेल कैसे रहे हैं भाई, बॉल और इनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब बॉल भी उतनी गोल है जितने ये गोल है. ओके, माय फर्स्ट नेम वाज ऋषि सर. ये हिंट उससे मिला था कि बॉल जितनी गोल है वो भी उतने गोल है. ओके ऋषि. ओके सर. हाँ जी. It's quite tricky. Let me guess. It's tricky नहीं है. I don't think so. It's tricky. And you cannot take my name. मैंने आपको देखा भी नहीं है, वरना मैं आपका नाम दे देता. Second one was दूसरा गुलाम सर. I think गुलाम अनफिट. गुलाम तेरे को ऑन कैमरा अंकित ने अनफिट बोल दिया भाई. जो तू बोलता है ना कि मैं मीडियम पेसर, आई एम एन ऑलराउंडर लाइक दिस एंड दैट, बेन स्टोक्स हो गया तेरा. नो मतलब अनफिट नहीं, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ग्राउंड पे मतलब जो है गुलाम हंटर्स का बेन स्टोक्स है. गुलाम हंटर्स का बेन स्टोक्स है और आपने उनको मतलब बोल दिया कि ही इज नॉट फिट. एनीवेज चलो, बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम ले रहे हो वैसे. अब 2 स्टार्स के नाम लिए, तो एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन है. हु इज द थर्ड वन? आई थिंक मनु सर. यार मनु सर का मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि उनका नाम ना आए, बट कहीं ना तुम लोग उनका नाम ड्रैग कर ही लेते हो. मनु सर, यू थिंक इज द मोस्ट अनफिट गाय? गॉड, मनु सर तो नहीं है मनु सर. हाँ, तो मैंने आई आस्क्ड यू हु इज द टॉप 3 अनफिट गाय, सो यू गिव मी ऋषि नंबर 1, गुलाम नंबर 2 एंड मनु सर नंबर 3. ओके, आई विल टेक दैट मनु सर, बट and 3 of you, मतलब a serious question on your fitness guys. Okay, we'll take that. Ma'am, let's move ahead. दूसरा क्वेश्चन आपके लिए. So you play for Hunters Red, right? आप Hunters Red से खेलते हो? या हाँ. और थोड़े मोटे मैच आपने Hunters Black वगैरह से भी खेले हैं. So which team do you think is better? और मतलब हमारे पास 3-4 टीम है बेसिकली हंटर्स में. विद इन द हंटर्स हमारे पास 4 टीम है, ब्लैक, येलो, रेड एंड ब्लू. तो आपको लगता है कि बेस्ट टीम जो है किन की है, जो सबको हरा सकती है विद इन द हंटर्स? आई थिंक ब्लैक एंड येलो बोथ आर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. और आप खेलते किससे हो? हाँ, आप खेलते किससे हो? रेड से. भाई कैप्टन कौन है आपका? कैप्टन कौन है यार? फायर दिस प्लेयर भाई. ये अपोनेंट की तारीफ कर रहा है कि अब भाई ब्लैक अच्छी है, येलो अच्छी है, रेड के बारे में मतलब मेरे को लगा शायद सेकंड नेम जो है रेड का ले लेगा कि हाँ यार शौकत, इफ यू आर वाचिंग अस प्लीज फायर दिस गाय. इसको बोलो यार ब्लैक से खेले या येलो से खेले, रेड से हमसे एक भी मैच नहीं मिलना चाहिए. तो व्हाई डू यू थिंक कि रेड इज नॉट मतलब गुड?
बिकॉज रेड अभी पूरी टीम नहीं है, मतलब वो हमें बन रही है, तैयारी हो रही है। हाँ बन रही है, तो अभी हमारे पास पूरे प्लेयर नहीं है। कभी कभी काफी बार हमारी टीम शॉर्ट पड़ सो जाती है। इन ब्लैक और येलो, अगर ब्लैक और येलो में मैच हुआ तो आपको क्या लगता है कौन बेटर टीम है, ब्लैक है या येलो? ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। मतलब बताए गए प्रभात मिश्रा की टीम बेटर है या गुलाम अस्करी की टीम बेटर है? रेड बेटर है, रेड। दैट इज नॉट द ऑप्शन। अब तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, अब तो तूने खुद ही ये क्वेश्चन इनवाइट किया। ब्लैक और येलो, इसमें से आपको एक टीम बतानी है कि कौन सी टीम बेटर है और आपकी फेवरेट है बेसिकली, और वो दूसरी टीम को तो हरा ही देगी। बताओ। वो टीम्स आर बेटर, आप एक को चूज नहीं कर सकते। नहीं, एक को चूज करना है वाली चीज है, आपको। आपको एक टीम चूज करनी है, यू हैव टू पिक वन। विनर तो एक ही होता है ना, मैच टाई थोड़ी होता है। आई थिंक येलो। हंटर ब्लैक, मतलब आपने बिल्कुल बाय हंटर ब्लैक को आपने बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया। येलो में कुछ मतलब फेवरेट, एनी फेवरेट टीम मैं अच्छा प्लेयर्स ज्यादा बेटर। फेवरेट गुलाम सर अंकित। गुलाम सर आपके फेवरेट है, बट वो तो खेलते हंटर्स ब्लैक से हैं और आपने उनको अनफिट भी बोल दिया है। ओ अच्छा, ओके, आई गॉट द आंसर। मेरे ख्याल से ऋषि हंटर्स ब्लैक का, राइट? ऋषि प्लेस, हाँ ऋषि हंटर्स ब्लैक पे खेलता है, गुलाम हंटर्स ब्लैक से खेलता है, और मनु सर भी हंटर्स ब्लैक से खेलते हैं। ये तीनों हंटर्स ब्लैक के प्लेयर हैं और आपने तभी हंटर्स ब्लैक को अनफिट भी बोल दिया, और दैट इज द रीजन यू आर टेकिंग साइड फॉर हंटर्स येलो। ओके, इट सीम्स लाइक कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। प्रभात ने कॉल किया था आपको ये बोलने के लिए? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार आपने तो पूरे हंटर्स ब्लैक का नाम ले दिया। कॉल तो इसके बाद आनी है। ओके, चलो मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। आप व्हाट इज योर स्टैंड ऑन नेपोटिज्म? आपको लगता है कि हंटर्स में भी नेपोटिज्म चलता है कि भाई भतीजावाद चल रहा है, जो बंदा अपने प्लेयर लेके आता है रेफरेंस पे, अपने फेवरेट्स को खिलाता है, और यू नो ग्रुपिंग बनी हुई है और सबको फेयर चांस नहीं मिलता? व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट कि नेपोटिज्म है हंटर्स में? नेपोटिज्म नहीं है, बिकॉज यहाँ कोई अपने स्पेसिफिकली कोई अपने प्लेयर्स लाता नहीं है। अच्छा। और बाकी आते हैं प्लेयर्स मनु सर के थ्रू आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो है खेलेगा ही खेलेगा। अच्छा। खेलेगा या उसका ब्लैक में ही जाएगा, तो मतलब अच्छे से हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं प्लेयर। अच्छा, नेपोटिज्म मुझे नहीं लगता है हंटर्स में। तो आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? मेरा स्माइलिंग फेस ही है, मैं सबकी आंसर हंसते हुए देता हूं। चलो, I'll take that. Even I believe that. हंटर्स में कोई नेपोटिज्म होता नहीं है। We believe in open door policy है हमारा एकदम, so which is a nice thing. Okay, who is let's assume, अच्छा क्या ना, क्योंकि आपका मतलब वो था चाइल्डहुड फैंटेसी था यार कि बॉलीवुड हीरो बनना है, स्टार बनना है, तो एक हमारे बॉलीवुड में ना बड़ा फेमस चीज होता है कि हम ड्रीम सीक्वेंस बड़ा करवाते हैं, है ना? सपना में वो देखा नहीं, ऐसे गोल 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 होता है, सपना होता है, एंड सपने में गाने वाने बड़े होते हैं एंड ऑल दैट। सो इसी नोट पे ना मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया आपके लिए। लेट्स अज्यूम आप एक सपना देख रहे हो, है ना? और उस सपने में आप एक लड़की बन चुके हो, यू आर ए गर्ल। अब ये मुझे बताओ, आप एक लड़की हो एंड इफ यू हैड टू डेट समवन फ्रॉम हंटर्स, तो वो कौन लड़का होगा जिसको आप डेट करोगे? और क्यों? ओके, लेट्स अज्यूम यू आर अ गर्ल। डेट। अगर आपको हंटर्स में से किसी को डेट करना पड़ जाए तो कौन होगा? और कोई टाइट कंपटीशन है, 3-4 आपने शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं, मतलब कर सकते हो। सॉरी 3-4 मतलब उनमें से एक, मतलब 3-4 हैं, इनमें से यू विल सी कि हाँ। लेट मी थिंक, ये काफी अजीब क्वेश्चन है कि हम स्किप नहीं कर सकते इसको। There is no skip button, there is no forward button. Okay. Quickly. यार इतने हैंडसम लड़के हैं, कम ऑन। कभी ऐसा सोचा नहीं ना, इसलिए सोचना बहुत मुश्किल है। I know. मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था, देख, okay, we are not questioning, ठीक है, your preference, but we are saying कि ड्रीम सीक्वेंस है। लेट्स अज्यूम यू आर अ गर्ल। अगर आप लड़की होते तो कौन से हंटर को आप
बट अपडेट कर दो। मैंने पहले बोला था बाउंसर्स आएंगे। आई ट्राई, मैं थोड़ा डक कर जाऊं बट हो नहीं रहा यहाँ पे। ओके, आई थिंक गौरव सर। गौरव को डेट करते? गौरव, पर भाई ही इज अ मैरिड गाय। गौरव शादीशुदा है, हैप्पीली मैरिड है। वी हैव सिंगल्स एज वेल इन आवर टीम। You said I know. you said Yeah, देखो, just assume, just हाँ, assume. अच्छा चलो छोटा, let's say he is quite a stud man, he is quite a stud. Oh, that's okay, Gaurav, you have some, you know, fan following, bro. Gaurav sir, if you are watching, please don't take it seriously. But others, I want you to comment right now. Okay, one thing you don't want to learn from your best friend Arpit. Okay, can I say 2 things? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 बोलो यार, 3 बोलो, मतलब इतनी कमियां हैं उसके अंदर क्या मुझसे सीखना नहीं चाहते? 2 3 4 चलो ठीक है। अर्पित देख ले। फर्स्ट वन वाज मुझे स्वीप मारना नहीं सीखना उससे। अच्छा क्यों? एक मिनट, स्वीप मारना नहीं सीखना मतलब वो स्वीप बहुत अच्छा मारता है, आप उसको वैसा कैरी नहीं कर पाओगे, या फिर वो स्वीप उसे मारना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इतना खराब मारता है? एक्चुअली वो कुछ मैच से काफी बेकार स्वीप मार रहा है, तो उसका मतलब फेवरेट शॉट हुआ करता था। तो एक एडवाइस, स्वीप मारना नहीं सीखना है। तो बेसिकली अर्पित तेरे लिए एक एडवाइस भी है भाई, कि स्वीप ठीक से मारना शुरू कर दे या फिर बंद कर दे। इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस। और सेकंड बताइए। सेकंड थिंग, अर्पित किसी के लिए इतना अर्पित होना सही नहीं है। मतलब ओके, सॉरी प्रॉब्ली आई मिसरेड इट। आप क्रिकेट से रिलेटेड बोल रहे हैं कि क्रिकेट के लिए इतना डेडिकेटेड है या समथिंग एल्स? बोथ। क्योंकि लास्ट टाइम भी हैदर ने बोला था कि अर्पित जो है वो अपनी जिंदगी जो है किसी के लिए समर्पित कर चुका है। अच्छा, ओके। ओके अर्पित, ये सारे राज खुल रहे हैं अब। ओके, मूविंग अहेड नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग भी है। रैंक इन ऑर्डर ऑफ टैलेंट, ठीक है? तो मैं 4-5 प्लेयरों का नाम ले रहा हूँ, सेम ये ग्रुप के ही हो तुम लोग, और तुम्हें बताना है कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है? अर्पित, अंकित सिंह, शिवम, मुकेश और सौम्यति, इन 5 के बारे में बताना। इनको ऑर्डर में मतलब बोलना है। जो सबसे अच्छा होगा उसका नंबर 1 दे, उसके बाद नंबर 2, उसके नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, अर्पित एंड अंकित सिंह और शिवम। नहीं, सबसे नंबर 1 कौन है? सबसे नंबर 1 अर्पित। मैं अभी रिमाइंड कर रहा था। अच्छा। हाँ, अर्पित, अंकित, शिवम, मुकेश, ओके, और मुकेश मारीमुत्तु और सौम्यदीप। ओके, ओके। आई थिंक फर्स्ट अंकित सिंह, ओके, एंड सेकंड अर्पित, थर्ड इज शिवम, ओके, एंड फोर्थ मुकेश मारीमुत्तु, और फिफ्थ सौम्यदीप। Okay, thank you. Okay, and meanwhile guys, if you have a different list, please comment there in the comment box so we can check कि आप लोगों का thought process is aligned with अंकित और राम. Okay, अब next question. मैंने थोड़े कैरेक्टर्स लूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बात भी की थी पहले कि आप वेब सीरीज वगैरह भी देखते हो, सुनने में आया था, काफ़ी इंटरेस्टेड। और लेटेस्ट आजकल क्या है, लॉकडाउन का सिचुएशन है कि तो हर कोई बंदा ने क्या OTT प्लेटफॉर्म पे जितनी वेब सीरीज है सब बिंज वॉच कर रहे हैं, एक के बाद बैक टू बैक देख ही लेके खत्म कर देते हैं। सो मैं ना कुछ कैरेक्टर्स के नाम लूंगा और आपको मेरे को बताना कि हंटर्स में ये कैरेक्टर कौन है। ओके, ठीक है, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर। मनु सर। ओके, मुन्ना भैया सिद्दीक। ओके, व्हाई सिद्दीक? बिकॉज वो काफी सुनते हैं और काफी सीखते हैं। यार मुन्ना भैया तो अच्छा, जो मुन्ना है वो तो ना सुनता है
ना कुछ करता है भाई, वो तो अपने दिल की करता था। हाँ, आई एम कमिंग ऑन दैट। वो मुन्ना भी सुनता था, लेकिन अच्छा। वो करता था अपने मन की। तो ऐसे ही सिद्दीक सर का है, वो सुनते अच्छा, हैं, सुनते हैं। करते हैं अपने मन की। या हाँ, तभी उसे बोला था, मनु सर बोलते भाई सिद्दीक ये शॉट नहीं खेलना है, ये मत करियो, ऐसे खेलियो। लेकिन सिद्दीक वही करेगा जो सिद्दीक को आता है, जो सिद्दीक करता है। राइट राइट। बट यार वाई मतलब मनु को कालीन क्यों भाई? मनु सर तो मतलब काफी मतलब शरीफ एंड उस किस्म के इंसान है। कालीन भैया तो कालीन like भैया डॉन कालीन डॉन थे। भैया कालीन भैया himself is a leadership quality and अच्छा, as well as मतलब वो एक गेम को चलाना जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, जो कैसे दिमाग। मैनेज करना है ग्रुप को। दिमाग दिमाग दिमाग। तो वो काफी सूट करता है मनु सर, मतलब ऐसे ही हंटर्स को चलाना, किस प्लेयर की क्या स्पेशलिटी है, कैसे टीम में लेना। तो ये इस सब चीज की वजह से काफी सूट करता है। राइट राइट राइट, मेक सेंस। हथौड़ा त्यागी कौन होगा हंटर्स का? हथौड़ा त्यागी आई थिंक अंकित सिंह। अंकित सिंह, ओ तेरी। अच्छा, साइलेंट किलर है वो भी। हाँ, वो क्योंकि वो भी बात नहीं करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, वो बात नहीं करता है बट काम अपना काम पूरा करता है, परफेक्शन के साथ करता है। एग्जैक्ट। या इनसाइड एज देखा था? या तो उसमें एक देवेंद्र मिश्रा करके कैरेक्टर था, ऑफ स्पिनर। ओके। हाँ तो वो कौन है हंटर का? देवेंद्र मिश्रा। ओके। जो यूपी का ऑफ स्पिनर था। आई थिंक ऋषि सर। ऋषि? किस लिए बिकॉज देवेंद्र as we can see देवेंद्र मिश्रा काफी रैगिंग लेता था जो प्लेयर्स की। अच्छा, तो ऋषि सर ऋषि को बहुत यार रैगिंग तो आप कहना चाह रहे हो कि ऋषि सब लोगों को बहुत बुली करता है? इज अ बुली। ओ भाई ऋषि। ओके ओके, ध्यान रखियो। अब जब ये नेक्स्ट टाइम ये ग्राउंड पे आएगा, इसकी रैगिंग ड्यू है, इसकी रैगिंग करनी है हमें। Who is the राजपाल यादव? Who is the राजपाल यादव हंटर्स का राजपाल यादव कौन है? राजपाल यादव, मुझे ऐसा ऋषि सर का नाम इसमें ज्यादा लेना चाहिए था पहले। चेंज करना है अभी। हाँ, मैं चेंज नहीं, या फिर क्या नहीं, ऋषि को 2 कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट कर सकता है। ऋषि को 2 कैरेक्टर के लिए भी नॉमिनेट कर सकता है। तो राजपाल यादव मतलब एकदम सूट करता है उनको। अच्छा, लेकिन मैंने तेरे को बताया नहीं, वो बहुत मैंने तेरे को बताया नहीं कि कौन से वाला राजपाल यादव। भूल भुलैया देखी है? भूल भुलैया तो उसमें एक वो सीन है जिसमें पूरा फेस पे कलर लगा के, यहाँ पे कान पे अगरबत्ती लगा के बैठा होता है। तो मैं उस वाले राजपाल यादव की बात कर रहा हूं। नहीं, फिर नहीं। ऋषि देख ले, इसने 2 अब कर दिए काम। एक तो उसने तेरे को बोल दिया यू आर अ बुली, तू रैगिंग लेता है, और ऊपर से तुझको बोल दिया भूल भुलैया वाला राजपाल यादव। अब तेरे पे छोड़ रहा हूं भाई, तेरे को इसके साथ क्या करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाथीराम चौधरी कौन है? हाथीराम चौधरी याद है? पातालोक। हाँ, पातालोक से हाथीराम चौधरी। आई थिंक मी माई सेल्फ, कैन आई आस्क माई नेम? हाँ, यू कैन टेक योर नेम, हाँ, बिकॉज वो काफी एग्रेशन में रहता है, और ऐसा है अभी ये फेज मेरा बहुत कम दिखता है। बाकी मैं ऐसा हूँ। और वो भी शायद जाट था। मुझे तो वो भी शायद जाट था। तो ये रिजेम्बलेंस भी होगी। राइट। अब आखिरी के 3 है, क्योंकि ना आजकल डीडी वन पे उस पे ना दूरदर्शन पे काफी रामायण और महाभारत भी चल रही है, तो मैंने 3 कैरेक्टर्स ना वहां से भी पिक कर लिए। भीम कौन है? भीम। ओके। भीम। गौरव सर। अच्छा, गौरव भीम है। ओके। या और कुंभकर्ण कौन है? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन। कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण, आवाज आ रही है? कुंभकर्ण अर्पित। क्यों? अर्पित राव। अर्पित क्यों? वो बहुत सोता है। अच्छा, वो कहीं भी सो सकता है अगर उसको थोड़ा सा भी कहीं टाइम मिले ना। तो अगर वो सोता है, हम लोग टूर पे जाते थे, जब वो सोता है तभी वो समर्पित रहता है। अच्छा, तभी वो सपने लेता है तो वो समर्पित रहता है, मतलब वो ओके, आई कैन कनेक्ट द स्टोरी नाउ। अर्पित, तेरा दोस्त देख तेरे लिए क्या कर रहा है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र अंधकार, उसे मतलब कुछ नजर ही नहीं आता क्या चल रहा है।
ये तो गैस करना काफी टफ है। हाँ, उस पे मत जा, फिजिकल अपीयरेंस पे मत जा। ओके उसके हिसाब से क्या, जो देख नहीं पता था, लेकिन उतना ही ज्ञानी था, उतना ही चतुर था, पूरी प्रजा वजह सब कुछ संभाल रखा था उसने, हिसाब किताब। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र या कोई नहीं है? ऐसा मैं एक तो होगा, एक तो होगा, एक तो होगा। कम है कोई आ रहा है। आई थिंक सॉकर सर। सॉकर धृतराष्ट्र है? अच्छा गेम से, बट वो देखकर भी हाँ देखकर भी वो अच्छे से गेम चला लेते हैं, तो ये न्यू जनरेशन धृतराष्ट्र कह सकते हैं उनको। अच्छा, मतलब मेरा वो क्या था, जो मतलब क्या कि जितना मर्जी बुराई हो रही है, शौकत अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, कुछ भी चल रहा हो अंधाधुन और शौकत अपनी आंखें बंद कर लेता है, बस चलने दो, कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ओके, लास्ट, दुशासन कौन? दुशासन, ये कैरेक्टर के बारे में आप मुझे थोड़ा एलेबोरेट करो। आई एम क्या बात कर रहे हैं? आई एम टू बैड। दुशासन को नहीं जानता? मतलब महाभारत में था दुशासन, और तेरा दुर्योधन का भाई था जिसने चीर हरण किया था द्रौपदी का। अच्छा, ये नेगेटिव रोल वाले मुझे कम याद है। मैं हीरो। अच्छा बेटा, मुझे लग रहा है कि तेरे अंदर मुझे एक दुशासन नजर आ रहा है। वो गोवा की बात मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है, और अभी तक पता नहीं चला है कि तू वॉशरूम में अकेला था या तू अकेला था। मैं बिल्कुल अकेला था, पूरे बस होश में नहीं था। दुशासन चीर हरण, आई थिंक ये नहीं है अपने हंटर्स में ऐसा कोई। क्या बात कर रहा है? आर यू श्योर? हाँ, ये ऐसा तो नहीं है कोई, क्योंकि देख अब बच तो सकता नहीं है, जो होना था वो हो गया। नहीं, ये कैरेक्टर तो नहीं है, मतलब जितना मैंने देखा। चलो, वेरी नाइस है। देयर इज नो दुशासन, देन गुड। हम लोग एनकरेज भी नहीं करते दुशासन को अपने टीम में। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस यार, वेरी वेल डन। अब एक और क्वेश्चन है रिवर्स स्विंग में। तो अच्छा, ये बता, तू राइट हैंडर है लेफ्ट हैंडर है? राइट हैंड। अच्छा, तो राइट स्वाइप करता है लेफ्ट स्वाइप करता है टिंडर पे? राइट स्वाइप करता है। ओके, सब तो राइट स्वाइप करता है। ये जब राइट स्वाइप करता है तो मुझे ये बता कि कितने राइट स्वाइप्स के बाद तेरे को फर्स्ट मैच मिला था टिंडर पे? ये मैंने बहुत लेट सुना है, क्या इस क्वेश्चन को हटा सकते हैं, बिकॉज़ मैं टिंडर यूज नहीं करता। You just said yes कि मैं राइट स्वाइप करता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है तू टिंडर पे है, तेरी प्रोफाइल बनाई गई थी। ये बॉल में थोड़ा जल्दी खेल गया, प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे मुंह से निकल गई। अब ये हो गया है। तो कितने राइट स्वाइप्स के बाद तुम्हें तुम्हारा पहला फर्स्ट मैच मिला था? टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैंने टिंडर यूज किया है काफी साल पहले, 2-3 साल पहले, बट एक भी राइट स्वाइप के बाद मेरा कुछ कनेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद ओह शिट, वहां भी कुछ नहीं हुआ। यार एक और चीज मैंने सुनी है, मतलब राउंड इज डन, यार आप भूल जाते हो और आपको भूलने की बड़ी गंदी आदत है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ग्राउंड में गए हो, बैटिंग करने आए हो, और ऑन फील्ड कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि यार मैं भूल गया, रन मारना भूल गया या रन लेना भूल गया, या कोई सेफ्टी गार्ड पहनना भूल गया? सेफ्टी गार्ड वाला हुआ है, रन मारना तो नहीं हुआ है। हाँ, वो मेरे ख्याल से काफी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हुआ है, क्योंकि मेरे कई बार होता है, एकदम से याद आता है कि हाँ कुछ भूल गया। मेरा एक फ्रेंड था, वो एक बार हेलमेट पहनने ही भूल गया था, उसे याद आया सामने 140 मीडियम पेसर पहनने वाला है, तो उसको याद आया मुझे हेलमेट भी पहनना है। तो मेरे साथ जो हुआ था वो एलगार्ड से रिलेटेड है। मैं गया ग्राउंड में और एडी भूल गया। 2-3 ओवर, हाँ मैंने 2-3 ओवर भी खेल लिए थे उसका। 2-3 ओवर खेल भी गया विदाउट एडी, और ओपनर है यानी। ओह माय गॉड, भाई सही बोलते तेरे फ्रेंड्स से तो भूल जाता है। देन आई रियलाइज कि मैं कुछ भूल रहा हूँ भाई, जल्दी ला। और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया है। ये तो वो वाला इंसिडेंट है जो सबसे ज्यादा फनीएस्ट है मेरे लिए, बिकॉज मैं 2-3 ओवर खेल चुका था, बाकी तो मुझे याद आ जाता ग्राउंड में घुसने के बाद हाँ मैं एडी बोला। भैया मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी गजनी से बात कर रहा हूँ, हाथों पे अपने टैटू वैटू करा ले कि ये लिस्ट बनानी है, मेरे को चेक करना है, चेकलिस्ट,
ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये पहन लिया. Now I'm fine, I'm ready to go. मुझे एक टैटू बनवा देना चाहिए शायद. So that's all I have in this round. Good job done, अंकित. बहुत बढ़िया किया तूने इस राउंड में. बहुत ही ब्रेवरी के साथ तूने फेस किया रिवर्स स्विंग को. सामना किया. And that was all I have in this round. So good job done. And I have another surprise for you. Watch it. Evening Hunters, I'm here to talk about Ankit Deshwal. What I understand with Ankit is he's a quiet chap with obvious athletic qualities, and when I say quiet, obviously when I'm around he's a bit quiet, but obviously looking at his Instagram and FB posts, he would obviously have a different side which is most probably known by the younger team members. A few points which I like about his cricketing abilities are he bats in stages. I mean, from a defending to attacking, these modes which he understands the best, and he can go seamlessly when to defend, when to attack, which is necessary according to the situation. So if he is being asked to don the opener's position, he knows when to attack, when to defend, and if he is asked to float down to the middle order, he knows exactly what his game plan would be, and according to the situation. So he's a complete team man. The other aspect which actually strikes out is his ability to field at different positions with the best of his abilities. For me, it's not only about your quality to bat and bowl well whenever you are given the opportunity, but to defend those many runs when you are on the outfield. So that's one quality which I look forward to, and I absolutely admire that when Ankit is on the field and he gives his best, whether he has scored X number of runs on the day or he has not. Irrespective of that, he tries to field the best at whatever position has been given to him. So that makes him a complete team man, and that's a rare quality. What I want to say is enjoy your game, do well, and it's been a very good journey so far, and hope we can see you perform extremely well over a period of time. Thanks. Okay, good job done. Quite a nice surprise. Let's quickly move ahead to our last section, which is dugout. So dugout में अंकित हम लोग बात करेंगे योर फेवरेट हंटर्स मेमोरी की, ठीक है? तो और या फिर लाइफ की कोई एक ऐसी मेमोरी जो तुझे लगता है कि ना तुझे हमें बतानी चाहिए, हमें सुनानी चाहिए. All yours. For Hunters, I think I haven't played many matches for Hunters, but my last match, मतलब before lockdown, against SS Sports, I scored 36 on 54 balls, which was my. उल्टा बोल रहा होगा. You scored 54 on 36. हाँ, I scored 54 runs on 36 balls. लगता है इंटरव्यू. मैं बोल रहा हूँ ये बाउंसर एक तेरे लगी है जो तू डक करने की कोशिश कर रहा है वो तेरे लगी है. आई थिंक मुझे नहीं हो जाता है. मैं ग्राउंड से बाहर ले जाया जा सकता है. कोई नहीं होता है. वो मोमेंट मेरे लिए काफी मेमोरेबल है. ये जो 54 रन्स वाला जो मोमेंट है वो काफी, एंड एट द सेम टाइम हमने काफी अच्छी पार्टनरशिप करी, अंकित एंड मी माई सेल्फ, अंकित प्रताप सिंह. अच्छा अंकित हो तुम दोनों? अंकित हाँ, we scored 154 runs partnership. Oh, very nice. Which is, I think, probably the bestest partnership for Hunters. अच्छा, अभी तक की Hunters की सबसे बेस्ट है वो 150 प्लस रन. Oh, very nice, quite commendable. Definitely यार, अब अगर रिकॉर्ड बना दिया है तो obviously भाई the favorite memory तो होगी ही होगी. So यार तेरे को तो ये तो बहुत शानदार चीज हो गई. और बता ऑफ द फील्ड जब हम हंटर से मिलते हैं, हंटर्स के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं डगआउट के बारे में, तो हमारा अपना ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है, जैसे बेसिकली डगआउट का जो माहौल होता है, वो कैसा है कंपेयर टू अदर टीम्स? अगर मतलब यू हैव प्लेड विद अदर टीम्स एज वेल, तो और टीमों में कैसा होता है? मतलब क्योंकि ना मेरे ख्याल से क्या होता है जब मैच हारते हैं ना कुछ टीमें बिखर जाती है, राइट? लेकिन जो टीमें मैच हारने के बाद भी साथ में रहती है ना, वो टीमें फिर ना उनको हम बोल सकते हैं हाँ एक बार ये टीम है
जो चाहे हारे या जीते ये टीम को तोड़ नहीं सकते, राइट? तो मुझे हंटर से यही लगता है कि यार चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, बट वी आर वन टीम, वी आर वन फैमिली, जो कभी टूट नहीं सकते। आप हमेशा अपना बेस्ट देते हो ग्राउंड में जाके। मैच का रिजल्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल कि या फिर किस चीज पे आप कर सकते हो कि डिसिप्लिन अपनी टीम का बेस्ट होना चाहिए और जिस तरीका का क्रिकेट हम खेलते हैं, राइट? सो बताओ उसके बारे में कुछ बताओ कि इतनी जगह खेला है उसमें हंटर्स कहाँ स्टैंड करता है या फिर कहाँ में इम्प्रूव करना चाहिए? आई थिंक फर्स्टली अगर हम एक एनवायरनमेंट की बात करें, आई हैव प्लेड स्टेट मैचेस एंड प्रैक्टिस मैचेस, प्लेंटी ऑफ मैचेस विद अदर टीम, बट काफ़ी डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है। देखो क्या कहता है, ये मैचेस में कोई हारता है कोई जीतता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो उसके बाद अगर हम जीत भी रहे हैं या हार भी रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई हमें डिमोटिवेट कर रहा है या मतलब जो ऐसा माहौल मिसबिहेव कर रहा है, गालियां दे रहा है, राइट? वो हंटर कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, ऐसा मतलब है ही नहीं, और ऐसा अदर टीम में भी नहीं है। डिफरेंट क्या लगता है मुझे कि मतलब काफी फनी मोमेंट रहता है, मतलब दे आर एंजॉयिंग क्या कहते हैं। और बाकी स्टेट के मैचेस अगर हम खेलते हैं या कुछ ऐसे मैचेस खेलते हैं प्रैक्टिस मैच, वहाँ क्या है बहुत उदासी वाला माहौल छा जाता है, यार ये क्या ही हो गया, एक पूरा दिन चला जाता है, रात को नींद नहीं आती, यार ये क्या हो गया। बट यहाँ ऐसा है, हमको फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है हारने के बाद, बट वही चीज है कि आपको वो बाउंस बैक करके आपको मोटिवेट करा जाता है और आपको बोला जाता है लेट्स मूव इट टू अनदर मैच। टूटती नहीं है टीम, बिखरती नहीं है। हम लोग फिर भी जाते हैं साथ में खाना खाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वी विन एज अ टीम। हाँ, ये इस हमारे हंटर्स के लिए काफी मतलब जो अलग चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। एग्जैक्टली, इवन दैट्स द रीजन आई लव हंटर्स अ लॉट एंड आई मीन इट। एंड ऑन दैट नोट अंकित, मतलब और कुछ है नहीं मेरे को पूछने के लिए। सो एक रिचुअल हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जो भी हमारा गेस्ट आता है शो पे, वो एंड जो है वो गाने से करता है, ठीक, इररिस्पेक्टिव कितना भी हो, कैसा भी गाता हो, ठीक है? और आई एम श्योर कि भाई तूने हमारा शो देखा है। सो अब तूने बताया कि राजेश खन्ना और इन सब का फैन रहा है, ठीक है, पुराने। तो एक कोई भी एक गाना हो जाए, मतलब बिडिंग सॉन्ग हो जाए कि बिफोर आई स्टार्ट, बिकॉज मुझे करना ही पड़ेगा, मैं कहना चाहूंगा जो भी हमारा शो देख रहे हैं कान बंद कर लें, बिकॉज मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तो प्लीज ना सुने। डेफिनेटली डोंट वरी, मेरे हेडफोन जो है ना उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन है, तो मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। But what about our viewers? हाँ, उनके लिए भी भैया, उनके लिए सॉरी वो मुझे बैन कर देंगे। डोंट वरी, मेरे ख्याल से इतना कोई नापसंद नहीं करेगा। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, गिव इट अ शॉट। क्योंकि मैं जैसा कि आपको पता है बहुत भूल जाता हूँ, तो ऐसे ही लिरिक्स में भी मेरे साथ मुझे याद नहीं रहते। भाई माफ कर देंगे तेरे को, अभी बहुत मौके मिलेंगे। मैं 2 लाइंस गा देता हूँ। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, विच इज फ्रॉम राजेश खन्ना मूवी 1971 अंदाज मूवी। अरे वाह। एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट व्हेनेवर आई गेट डाउन, बहुत नेगेटिव फील वाली जो वाइब रहती है, तो मैं ये सॉन्ग काफी सुनता हूँ। तो ओके, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओ उठले बस Oh, that was very nice, Ankit. And ladies, तो काम खराब हो जाता। Thanks a lot, you being a sport, and great job done. Best of luck for your future and do well in your career. और हमेशा याद रखना कि you were part of the field with Rahul. बिल्कुल याद रखूंगा, ये बहुत मेमोरेबल और अवसर जो मुझे लगी है, इतना मेरे ग्राउंड में नहीं, क्या कहते हैं जो उनको मुझे डिफिकल्ट हुआ है जेल यहाँ हुआ है। ओके, I hope you enjoyed it, and I hope our viewers also enjoyed it. And on that note, I'll take your leave. Thanks a lot for watching us. Keep subscribe our channel and stay home, stay safe. Till time, take care. Good night. Bye bye. Take care. Bye. Think of health. Think of us. Think of weight management. Think of us. Think of lifestyle modification.
think of us. We are Anchal's Nutri Treasure. We have a history of changing life to healthy life over the period of 2 years now. Healthy life with healthy diet is the name of the game we all are in for. If yes, we are the one, Anchal's Nutri Treasure. Personalized services from qualified dietitian Anchal Garg Sharma around metabolic disorders like diabetes mellitus, cholesterol, hypertension, thyroid, and PCOS management, etc. Interested healthy life, healthy diet believers can reach us at our Facebook and Insta pages at anchal.nutritreasure, email anchal.nutritreasure@gmail.com, contact number 886-042-8386.